السلام علیکم، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں عائشہ یوسف۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ خسرے سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری، وبا نے مزید 3 بچوں کی جان لے لی۔ چنگی عمر صدو کا اورنگزیب، پتوکی کا 2 سالہ احمد اور 1 سالہ ماہم ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بہنوں کی کارکنوں کے ہمراہ بی بی پاک دامن کے مزار پر حاضری، کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ علیہ خان کا کہنا ہے کہ پارٹی کے لیے گھر گھر جا کر ووٹ مانگے گی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے مزن کے علاقے میں 15 سے زائد انتخابی دفاتر کا افتتاح کر دیا، خواتین کا والہانہ استقبال۔ ہمارا اتحاد مخالفین کے چھکے چھڑا دے گا، پیپلز پارٹی کی امیدوار سمینہ خالد گھرکی کا ملک پور میں کارنر میٹنگ سے خطاب۔ سمینہ خالد گھرکی اور اعجاز احمد دیال کی UC 61 مندیا مالا میں بھی کارنر میٹنگ۔ شیر کا جادو بول رہا ہے، عمران خان بھی شیر پر مہر لگانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جاتی عمرہ میں شہباز شریف کی پریس کانفرنس، جبکہ بلڑگاؤں میں میاں شہباز شریف کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسہ، سینئر لیگ کی رہنما طلحہ بلخی کی خصوصی شرکت۔ NA 121 سے تحریک انصاف کے امیدوار حماد اظہر اور PP 149 سے میاں اکرم عثمان کا رستم پارک کا دورہ، گھر گھر جا کر ووٹر سے ملاقات۔ فیصل ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام خواتین کا جلسہ، NA 126 سے امیدوار لیاقت بلوچ کا خطاب۔ PP 148 سے تحریک انصاف کے امیدوار میاں اسلم اقبال کی انتخابی مہم جاری، عشرہ کے علاقے چاہ جموں میں گھر گھر پمفلٹ تقسیم کیے۔ PP 154 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر کے اعزاز میں گجر کالونی میں کارنر میٹنگ، اہل علاقہ اور کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ NA 126 سے تحریک انصاف کے امیدوار شفقت محمود اور PP 152 سے ڈاکٹر مراد راز کی ماڈل ٹاؤن سوسائٹی میں کارنر میٹنگ، عمران خان کی ہمشیرہ علیہ خان کی خصوصی شرکت۔ سٹی 42 کے پروگرام الیکشن سٹی میں PP 124 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار بشرا اعتزاز کی خصوصی شرکت، مبصرین کا لاہور کے انتخابی حلقوں اور پارٹی پوزیشن پر تبصرہ۔ ٹاؤن ہال میں ٹھیکیداروں کے بائیکاٹ کے باعث بکر منڈی شاہپور کانجنا کے سالانہ ٹھیکے کی نیلامی منسوخ کر دی گئی۔ صوبائی کابینہ نے پنجاب کمیشن ویمن آرڈیننس 2013 کے مسودے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ فیصلہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کیا گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکاروں کی مجاہد فورس کو دوران تلاشی دھماکہ خیز مواد اور گاڑیوں کی تلاشی کی ٹریننگ، SP مجاہد اسکواڈ کیپٹن ریٹائرڈ رومیل اکرم کا خصوصی لیکچر۔ کسی ہوٹل میں سائنس گروپ پنجاب کے زیر اہتمام ایڈز کنٹرول پروگرام کا انعقاد، وزیر صحت سلیمہ ہاشمی کی خصوصی شرکت۔ PP ہوٹل میں موسیٰ ملٹی پلیکس کے تحت ہینڈی کرافٹ نمائش، کپڑوں، جیولری، پینٹنگز اور سجاوٹ کی اشیاء میں خواتین کی گہری دلچسپی۔ اور سٹی 42 کے الیکشن بس چوبرچی پہنچ گئی، شہریوں کو الیکشن کے حوالے سے آگاہی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شہر میں خسرے سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے، وبا نے مزید 3 بچوں کی جان لے لی۔ خسرے میں مبتلا چونگی امر صدو کا رہائشی 8 ماہ کا اورنگزیب اور پتوکی کا رہائشی 2 سالہ احمد چلڈرن ہسپتال میں دم توڑ گئے، جبکہ مرض کے شکار کوٹ خواجہ سعید کی رہائشی 1 سالہ ماہم نے میو ہسپتال میں دم توڑا۔ دوسری جانب شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 24 گھنٹوں کے دوران خسرے کے 78 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ میو ہسپتال میں خسرے کے حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے 7 سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہسپتال کے MS ڈاکٹر زاہد پرویز کی زیر قیادت مرض سے بچاؤ کے لیے آگاہی واک بھی ہوئی۔ خسرے سے بچاؤ کے انجیکشن لگانے کے لیے میو ہسپتال کے مختلف شعبوں میں سینٹرز بنائے گئے ہیں۔
जहां मरीजों के इलाज मुआलजे के अलावा उनकी देखभाल की जाती है। जबकि मेयो हस्पताल के एमएस डॉक्टर जाहिद परवेज की ज़ेर क़यादत होने वाली वॉक में डॉक्टर समेत नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। गुलबर्ग टाउन के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज बराए ख़वातीन में खसरे की आगाही मुहिम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में कॉलेज के प्रिंसिपल मिसेस फरजाना सलीम, एडीओ हेल्थ इनामुल हक, टीएमओ गुलबर्ग टाउन अली हसन जाफरी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, कॉलेज असातिज़ा समेत तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। माहिरीन ने बताया कि हर पैदा होने वाले बच्चे को वैक्सीनेशन कराई जाए ताकि खसरा समेत दीगर मूज़ी अमराज से बचा जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त फुटबॉल ग्राउंड गुलशन रावी में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। आगे आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इमरान खान साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़रदारी साहब का बिजली के अंधेरों में कोई कसूर नहीं तो इसका मतलब है कि पीआईए को भी शहबाज शरीफ ने खराब किया है। इसका मतलब है कि रेलवे के डब्बे मुसाफिरों को लेकर जब जंगलों में डीजल न होने की बना पर खड़े हो जाते हैं वो भी शहबाज शरीफ करता है। इसका मतलब यह है कि स्टील मिल में जो बर्बादी हुई और अरबों रुपए की लूट खसूट हुई वो भी शहबाज शरीफ करता है। खान साहब, ये नहीं चलेगा। और लाहौर में मेट्रो बस जो कि रोज 1.25 लाख आदमी को लेकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाती है। तो खान साहब, आप उसको जब जंगला बस कहते हैं तो पीपल्स पार्टी भी जंगला बस कहती है, क्यों लीग भी जंगला बस कहती है। जब आप उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि 70 अरब लगे 30 अरब के बजाय, तो पीपल्स पार्टी भी 70 अरब कहती है और क्यों लीग भी 70 अरब कहती है। आप एक जुबान से बोलते हैं, एक तकरीर करते हैं और आपका तकरीर लिखने वाला भी एक ही आदमी है। 11 मई को तीर और बल्ला और साइकिल हवा में होंगे। फुटबॉल ग्राउंड में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। नून लीग के बाद बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जिसके चेयरमैन इमरान खान के अहले खाना ने कारकुनों के हमरा बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाजिरी की। हाजिरी के मौके पर इमरान खान की बहनों अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान के साथ तंजीमी कारकुन भी शरीक थे। इस मौका पर इमरान खान की बहनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए वो इंतखाबी मुहिम तेजी से चला रही हैं। उन्होंने कहा कि अवाम पीटीआई की कामयाबी के लिए 11 मई को अपने घरों से निकलें और बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर करप्ट हुक्मरानों को हमेशा के लिए सियासत से दूर कर दें। यूसी 161 में एनए 130 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार समीना खालिद खुर्की और पीपी 158 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी नवीद आशिक दयाल के भाई एजाज अहमद दयाल के एजाज में मुंडियावाला में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मोहम्मद इसहाक, सफदर मियो और उस्मान दयाल समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए समीना खालिद खुर्की का कहना था कि उन्होंने साबिक दौर में हल्के के हर घर में गैस फराहम करने की कोशिश की। शुरका से खिताब में एजाज अहमद दयाल का कहना था कि वो इलाके में अमन व अमान चाहते हैं, इसलिए अवाम अच्छे किरदार के हामिल उम्मीदवारों को मुंतखब करें। जबकि एनए 130 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार समीना खालिद खुर्की और पीपी 158 से चौधरी नवीद आशिक दयाल का कहना है कि उनका इत्तेहाद मुखालिफिन के छक्के छुड़ा देगा। नवीद आशिक दयाल के भाई चौधरी एजाज अहमद दयाल ने मलकपुर में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। एजाज अहमद दयाल का कहना था कि 11 मई को अवाम वोट कास्ट करते वक्त आला किरदार के हामिल उम्मीदवारों को याद रखें। समीना खालिद खुर्की ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे करके हकीकी जमहूरियत का हक अदा कर दिया है। इलेक्शन के करीब आते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहर के कौमी और सूबाई हलकों के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है।
हल्का NA 124 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार बुशरा एतजाज एहसन के एजाज में दारोगा वाला में खवातीन कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बुशरा एतजाज एहसन का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम और मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। मुस्तकबिल में भी उनकी जमात अवाम और मुल्क की खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी। हल्का PP 154 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर के एजाज में गुजर कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। शुरका से खिताब करते हुए फैसल मीर का कहना था कि वो इलाके से मुंतखब होकर बायोगैस प्लांट की तनसीब समेत बुनियादी मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे। PP 149 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी नादिर खान का कहना है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। भल्ला चौक में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में शरीक नौजवानों ने हाजी नादिर खान के हक में नारे बुलंद किए। PP 144 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जाहिद अली शाह ने स्वामी नगर में डोर टू डोर कैंपेन की। इस मौके पर स्वामी नगर के रिहायशियों ने सैयद जाहिद अली शाह को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। अहले इलाका से गुफ्तगू करते हुए सैयद जाहिद अली शाह का कहना था कि वो हल्के के ही रिहायशी हैं और अवाम के मसाइल उनके दरवाजे पर हल करेंगे। PP 143 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद अहमद के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। चाइना स्कीम में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए हाजी मोहम्मद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन और गवादर पोर्ट के मंसूबों पर वो काम किया है जो कोई और हुकूमत नहीं कर सकती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PP 150 से उम्मीदवार आसिफ महमूद नागरा ने ढोलनवाल में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मीर राशिद शाह के डेरे पर कायम दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर कारकुनों और अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। कारकुनों ने आसिफ महमूद नागरा का शानदार इस्तकबाल करते हुए उन्हें फूलों के हार पहनाए और नारेबाजी की। हल्का PP 150 से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ महमूद नागरा ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। ढोलनवाल बाजार में आसिफ महमूद नागरा ने कारकुनों के हमरा ताजरों और अहले इलाका से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर पंफलेट तकसीम किए और लोगों से वोट की अपील की। दीगर सियासी जमातों की तरह मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम भी उरूज पर पहुंच चुकी है। इस सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से अपने अपने हलकों में दफातर के इफ्तिताह, कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का इनेकाद जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने मजंग के इलाके में 15 से ज्यादा इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज इफ्तिताह करने के लिए एक बड़ी रैली की सूरत में मजंग के इलाके में पहुंची, जहां उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। लीगी कारकुन नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी करते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग लाहौर की चीफ ऑर्गेनाइजर शाइस्ता परवेज मलिक ने बेगमपुरा में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि खवातीन को शेर के निशान पर मोहर लगाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फतह दिलाना होगी। शाइस्ता परवेज मलिक ने खवातीन में आला कारकर्दगी की बुनियाद पर सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। कोट ख्वाजा सईद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें शाइस्ता परवेज मलिक समेत खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शाइस्ता परवेज मलिक ने मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में जारी तवानाई का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इक़्तिदार में आकर इसे बहुत जल्द खत्म कर देगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर यूसुफ पाक शाहदरा में लीगी रहनुमा अकमल खान बारी ने कारकुनों के हमरा इंतखाबी मुहिम के बारे में मशावरती इजलास किया। अकमल खान बारी ने कहा कि NA 118 से हाजी मलिक रियाज और PP 137 से ख्वाजा इमरान नजीर को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। उन्होंने लोगों में इंतखाबी पंफलेट तकसीम किए और उनसे अपील की कि वो नून लीग को वोट दें। बुल्लहड़ गांव में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसा आम मुनक्किद किया गया, जिसमें सीनियर लीगी रहनुमा तलहा बरकी ने खुसूसी शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमाओं का कहना था कि जब लाहौर में डेंगू की वबा उरूज पर थी तब ये तब्दीली का नारा लगाने वाले कहाँ थे। 11 मई को मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर अहले इलाका ने साबिक वज़ीर आला की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। 60 फीट रोड पर जलसे का इनेकाद किया गया। NA 121 और PP 150 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक अहमद ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून गरीब आवाम की हर दिल अजीज जमात है, जिसकी वजह से वडेरे और जागीरदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खौफजदा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बाकी जमातों की तरह सियासी मफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसले नहीं करते। NA 121 और PP 150 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक ने इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया और घर घर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने हल्के के अवाम से कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को वोट देकर करप्ट लोगों को मुस्तरद करें और 11 मई को शेर पर मोहर लगाकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब कराएं। हल्का PP 145 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहीद गुल के एजाज में कोटली घासी के रिहायशियों ने कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग से खिताब करते हुए वहीद गुल का कहना था कि 11 मई का दिन मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन होगा। एटमी धमाके करने और मोटरवे बनाने वाली जमात इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद मुल्क में बिजली बहरान का भी खात्मा करेगी।
भगतपुरा की मसीही बरादरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्का NA 123 से उम्मीदवार परवेज मलिक और हल्का PP 143 से उम्मीदवार चौधरी शहबाज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। चौधरी शहबाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अक़लियतों के हक का मुकम्मल एहतराम करती है और इसी जमात ने मसीही बरादरी को अपने दौरे हुकूमत में हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पक्की ठट्टी समनाबाद में जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें PP 151 से लीगी उम्मीदवार सैयद तौसीफ शाह ने खुसूसी शिरकत की। जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब मुस्लिम लीग नून अवामी मैंडेट हासिल करेगी और बरसरे इक़्तिदार आएगी। इंतखाबात में सियासी शोबदाबाजों और अदाकारों को शिकस्त होगी। सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबात में कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। PP 147 से आजाद उम्मीदवार अयाज अहमद बॉबी के एजाज में बंद पार्क के इलाके न्यू अमीन पार्क में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए अयाज बॉबी का कहना था कि मैंने हमेशा इलाके की खिदमत की है, मुझे उम्मीद है कि लोग अब नारों को वोट नहीं देंगे। इस मौके पर अयाज बॉबी ने शुरका से अपील की कि वो कौमी असम्बली की नशस्त के लिए मियां नवाज शरीफ को जबकि सूबाई असम्बली के लिए मुझे वोट दें। जमात इस्लामी के NA 126 से उम्मीदवार लियाकत बलोच और PP 151 से उम्मीदवार महमूदुल अहद ने देकेवाल गांव में घर घर जाकर अवाम से वोट की अपील की। लियाकत बलोच ने अहले इलाका को यकीन दिलाया कि जमात इस्लामी बरसर इक़्तिदार आकर अदलो इंसाफ का बोल बाला करेगी। लियाकत बलोच और महमूदुल अहद ने फैसल टाउन में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम खवातीन के जलसे से भी खिताब किया। लियाकत बलोच का कहना था कि इस्लाम मर्द और औरत को बराबरी का दर्जा देता है और मौजूदा दौर में ये बहुत जरूरी है कि औरत मर्द के शाना बशाना काम करे। मुस्लिम लीग काफ के PP 149 से उम्मीदवार हबीबुल्लाह भट्टी ने गुलशन रावी में खवातीन के लिए कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया। खवातीन से खिताब करते हुए हबीबुल्लाह भट्टी ने कहा कि 11 मई को खवातीन मर्दों के शाना बशाना वोट कास्ट करके मुस्लिम लीग काफ को कामयाब कराएं। उधर PP 149 की सियासी शख्सियत जाहिर तहरा ने मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हबीबुल्लाह भट्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से शिबली टाउन बंद रोड पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मलिक मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद शहबाज तारिक चौहान, डॉक्टर नजीर इलियास भट्टी और जावेद जट ने शिरकत की। PP 153 से आजाद उम्मीदवार मियां अब्दुल रज़ाक ने खवातीन के साथ कॉर्नर मीटिंग की। मीटिंग का एहतमाम शहनाज बीबी ने किया था। मियां अब्दुल रज़ाक ने खवातीन से दरखास्त की कि वो 11 मई को इंतखाबी निशान स्त्री पर मोहर लगाएं। मियां अब्दुल रज़ाक ने क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन में डोर टू डोर कैंपेन भी की। इंतखाबी मुहिम के मौके पर आजाद उम्मीदवार मोहम्मद ज़िशान शेरवानी ने मियां अब्दुल रज़ाक के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया। साबिक लेडी काउंसलर नसीम बाजवा ने भी मियां अब्दुल रज़ाक की हिमायत की। गुलशन रावी में PP 149 से आजाद उम्मीदवार शुएब खान न्याजी के दफ्तर में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में यूनियन काउंसिल 84, 85 और 87 से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने शिरकत की। शुएब खान न्याजी का कहना था कि 11 मई के इंतखाबात में खवातीन का वोट अहम किरदार अदा करेगा। मुत्तहिदा दीनी महाज के PP 149 से उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज चौधरी ने अकरम पार्क बंद रोड पर कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें पीर शेख मोहम्मद अकमल, राना मोहम्मद अकमल, हाफिज मोहम्मद अरशद और मलिक हैदर समेत दीगर मौजूद थे। संगत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम टाउनशिप में उम्मीदवार फोरम के नाम से NA 127 से मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों से सवाल और जवाब का सेशन हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीकर रोड पर वाक़ अल अरूज मैरिज हॉल में मुनक़्क़िदा उम्मीदवार फोरम में NA 127 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नसरुल्लाह मुग़ल, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहीद आलम खान, MQM के उम्मीदवार बिस्मा आसिफ, आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर सोहराब असलम और अक़लियती आज़ाद उम्मीदवार डैनियल मसीह ने शिरकत की। बकर टाउन शाहदरा में सुन्नी तहरीक के मरकजी दफ्तर में PP 137 से आजाद उम्मीदवार मियां अजीम यासीन ने हाजी आमिर रशीद से मुलाकात की। इस मौके पर सुन्नी तहरीक के रहनुमा हाजी आमिर रशीद खान ने साथियों के हमरा मियां अजीम यासीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। सिटी 42 के इलेक्शन सिटी में इंतखाबी दंगल ज़ेर बहस। NA 124 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार बेगम बुशरा एतजाज ने प्रोग्राम में ख़ुसूसी शिरकत की। बुशरा एतजाज का कहना है कि मुस्लिम लीग 32 साल से शहर की हाकिम जमात है, लेकिन NA 120 के मकीन पानी जैसी बुनियादी जरूरियात से भी महरूम हैं। इलेक्शन सिटी में मेजबान यासिर कुरैशी के साथ NA 124 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार बुशरा एतजाज, सीनियर सहाफ़ी खालिद चौधरी, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, कॉलम निगार और तज्जियाकार अख्तर हयात और सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी शरीक हुए। बुशरा एतजाज ने कहा कि उनके शौहर एतजाज अहसन इस इलाके से मुंतखब होते रहे और NA 124 पीपल्स पार्टी का हल्का है। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। निगरान वज़ीर आला नजम सेठी ने फातिमा मेमोरियल हस्पताल की नई इमरजेंसी का इफ्तिताह करते हुए हस्पताल के लिए 10 मिलियन की ग्रांट और लीज पर अराजी देने का ऐलान किया है। निगरान वज़ीर आला नजम सेठी ने फातिमा मेमोरियल अस्पताल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना हम सब का फर्ज है और इस सिलसिले में फातिमा मेमोरियल अस्पताल की खिदमत काबिल तारीफ हैं।
انہوں نے فاطمہ میموریل ہسپتال کی انتظامیہ کے مطالبے پر ہسپتال کو 4 ایکڑ اراضی لیز پر دینے اور 10 ملین روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا۔ نگران صوبائی کابینہ نے پنجاب کمیشن ویمن آرڈیننس 2013 کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ فیصلہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں تمام نگران وزراء، مشیران، سیکریٹری قانون، سیکریٹری خزانہ، سیکریٹری ہائر ایجوکیشن، سیکریٹری ویمن ڈیولپمنٹ اور سیکریٹری انفارمیشن سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں نگران کابینہ نے متفقہ طور پر پنجاب کمیشن ویمن آرڈیننس 2013 کے مسودے کی منظوری دی۔ ٹاؤن ہال میں ٹھیکیداروں کے بائیکاٹ کے باعث بکر منڈی شاہپور کانجرا کے سالانہ ٹھیکے کی نیلامی منسوخ کر دی گئی ہے۔ کمشنر نسیم نواز، ڈی سی او سید رضوان محبوب، اسسٹنٹ کمشنر آرون سندس ارشاد اور ایڈیشنل کمشنر غلام سرور نور کی زیر نگرانی بکر منڈی شاہپور کانجرا کے سالانہ ٹھیکے 2013-14 کی نیلامی کے لیے بولی کا انعقاد کیا گیا۔ بولی میں ٹی ایم او اقبال ٹاؤن چودھری لیاقت علی، ٹی او ایف میاں مظہر سمیت ٹھیکیداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ٹھیکے کی سالانہ رقم 14 کروڑ 44 لاکھ روپے رکھی گئی۔ ٹھیکیداروں نے احتجاج کرتے ہوئے کمشنر لاہور اور ڈی سی او سے بولی کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ چیئرمین پیمرا رشید احمد نے کہا ہے کہ کیبل آپریٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے جلد اسلام آباد میں مشترکہ اجلاس طلب کیا جائے گا۔ پیمرا آفس کینٹ میں منعقدہ پریس کانفرنس میں صدر آل پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن ملک فرقان غیاث، نائب صدر کیپٹن ہدایت جبار، چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن پنجاب رانا زاہد اور کیبل ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے چیئرمین پیمرا کو کیبل انڈسٹری کے مسائل سے آگاہ کیا۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی جانب سے کارنر میٹنگز اور گھر گھر انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ این 126 سے جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوچ کے اعزاز میں ماڈل ٹاؤن میں پیر غلام رسول شاہد کی رہائش گاہ پر کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ لیاقت بلوچ نے کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز کی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے اور عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے دینی جماعتوں کا اتحاد ناگزیر ہے۔ این 125 سے آزاد امیدوار فیصل حاکم علی بھٹی، پی پی 155 کے امیدوار میجر کے ڈی اور پی پی 156 کے آزاد امیدواروں کی جانب سے اہل علاقہ کے ہمراہ کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف گاؤں کے رہائشیوں نے متعلقہ امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا۔ فیصل حاکم علی بھٹی نے چرڑ گاؤں میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ 20 سال بعد سیاست میں دوبارہ اترے ہیں کیونکہ پورا حلقہ کرپٹ ٹولے سے نجات چاہتا ہے۔ انتخابات جوزو قریب آ رہے ہیں، الیکشن کی گہما گہمی میں تو اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک دن امیدوار کے ساتھ سٹی 42 کے رپورٹر عمر اسلم دکھا رہے ہیں آپ کو حلقہ این 120 سے تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کی الیکشن کمپین۔ ایک دن امیدوار میں آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حلقہ این 120 سے امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد سے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اپنی انتخابی مہم کس طرح چلا رہی ہیں۔ آپ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں، کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ 14 یونین کاؤنسلز ہیں، 14 مکمل یونین کاؤنسلز ہیں حلقے 120 کے اندر، اور دو جو ہیں میرے پاس آدھی یونین کاؤنسلز ہیں۔ میڈم، لوگوں کا کیا رسپانس ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے؟ مجھے تو بہت اچھا رسپانس ملا ہے، اور میری جو ٹیمیں چل رہی ہیں وہ بھی بہت اچھا رسپانس بتا رہی ہیں۔ این اے 120 سے تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد نے گورنمنٹ ایم یو کالج کے عقب میں موجود اپنے دفتر میں قائم کیے گئے کال سینٹر کا دورہ کیا اور بتایا کہ کال سینٹر پہ 8 سے زائد رضاکار کام کر رہے ہیں جو الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں۔ کہیں ڈور ٹو ڈور کیمپین تو کہیں میٹنگز۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج حلقے میں مصروف ترین دن گزارا، اس حوالے سے مزید بات کریں گے، موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ اگر آپ حلقہ این 120 سے کامیاب ہو گئیں تو کیا کریں گے اس علاقے کے لیے؟ دیکھیے جی، سب سے اہم اس علاقے کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ضرور جتنی پوری کوشش کریں گے۔ ایک تو پانی کا مسئلہ، یہاں صاف پانی پینے کا، یہاں کا جو یہ سینیٹیشن کا مسئلہ ہے، یعنی گندا پانی اخراج کا جو مسئلہ ہے، اس کے مسئلے کو حل کریں گے۔ صحت کا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں سکولز کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ حل کریں گے تاکہ یہاں کے بچوں کو ایک تو صحت ملے اور پھر ان کو کسی طریقے سے ہم اپنی یہ ساری جنریشن جو ہے اس کو پڑھا لکھا کر دیں۔ اگر یہاں سے کامیاب ہو گئیں تو صحت اور تعلیم بنیادی ترجیحات میں شامل ہوگا، یہ کہنا ہے ڈاکٹر یاسمین کا۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔
डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सेशन जज नज़ीर अहमद गुजाना ने मुतल्लिका इदारों को इलेक्शन के रोज शहरियों की सहूलत के पेश नज़र मोबाइल फोन सर्विस बंद न करने और CCPO को पोलिंग स्टाफ और शहरियों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत की है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सेशन जज नज़ीर अहमद गुजाना ने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर CCPO खालिक दादलक, जिला इंतजामिया और डिविजनल इंजीनियर टेलीफोन को हिदायत की है कि इलेक्शन के रोज मोबाइल फोन सर्विस बहाल रखी जाए ताकि इलेक्शन के रोज शहरियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। माल रोड पर वाक़ PC होटल में मूसा मल्टीप्लेक्स के तहत हैंडीक्राफ्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया। PC होटल के पर्ल हॉल में मुनक्किदा नुमाइश में कढ़ाई वाले कपड़ों, ज्वेलरी, पेंटिंग्स और सजावट की मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए थे, जिन्हें देखने के लिए आयशा अमजद, अमीना महमूद, मरियम सादिक, रुबीना गुल और हाजरा समद समेत खवातीन की कसीर तादाद उमड़ आई। नुमाइश के चीफ ऑर्गेनाइजर मूसा मेहरान अहमद ने बताया कि वो इस किस्म की नुमाइशों का इनेकाद करते रहते हैं क्योंकि इससे छोटे पैमाने पर कायम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को फरोग मिलता है। शायकीन खवातीन का कहना था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की तरक्की के लिए हुकूमत को भी इकदाम करने चाहिए। NA 129 और PP 159 से उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि वो इक़्तिदार में आकर तरक्याती मंसूबों का तसलसल जारी रखेंगे। जाती उम्रा में 27 साबिक नाज़मीन, नायब नाज़मीन और काउंसिल्स ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया, जिसके बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शेर का जादू बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, इसीलिए इमरान खान अवाम को शेर पर मोहर लगाने का मशवरा दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के NA 126 से उम्मीदवार ख्वाजा अहमद हसन और PP 152 से उम्मीदवार ख्वाजा सलमान रफीक की बेगमात ने मॉडल टाउन में कॉर्नर मीटिंग की। मुस्लिम लीग नून के दोनों उम्मीदवारों की बेगमात आयशा हसन और शुमाइला सलमान रफीक ने मॉडल टाउन A ब्लॉक में मिसेस मतीन अहमद राना की रिहाइशगाह पर कॉर्नर मीटिंग की, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर दोनों उम्मीदवारों की बेगमात ने खिताब किया। उनका कहना था कि अवाम मियां नवाज शरीफ को वोट डालें क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने साबिक दौरे हुकूमत में बहुत काम किए, इसी तरह दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद वो पाकिस्तान को मुस्तहकम और खुशहाल बनाएंगे। PP 141 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान के एजाज में बिलाल पार्क चाह मीरा में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में महमूद अहमद, सलीम खान, गुलजार हुसैन और मोहम्मद नवाज समेत कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि वो कामयाब होकर 10 लाख अफराद को रोजगार फराहम करेंगे, जिससे बेरोजगारी का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौर में इलाके में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए गए, जिसकी वजह से आज भी लोग मुस्लिम लीग नून के दिलदादा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर पहुंच गई है। PP 148 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद असलम इकबाल ने इचरा के इलाके चाह जम्मू में घर घर जाकर पंफलेट तकसीम किए और वोटर्स से वोट मांगे। उनका कहना था कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है, लोग बल्ले पर मुहर लगाकर शेर को वापस पिंजरे में बंद कर देंगे। उधर न्यू समराबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद इजाज की रिहाइशगाह पर मियां असलम इकबाल के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम भी किया गया, जिसमें चौधरी नवाज, मियां बशीर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मियां मोहम्मद असलम इकबाल का कहना था कि 11 मई को लाहौर की आवाम ये साबित कर देंगे कि तहरीक इंसाफ लाहौर का गढ़ है। PP 143 भोगेवाल चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनों की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। तहरीक इंसाफ पंजाब की ज्वाइंट सेक्रेटरी आलिया मलिक ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि खवातीन घर घर जाकर तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि खवातीन की शिरकत के बगैर नए पाकिस्तान का कयाम मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ के नवाबपुरा के रिहायशी कारकुन मोहम्मद सदीक ने इल्जाम आयद किया है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन उन्हें हिरासा कर रहे हैं। मोहम्मद सदीक के मुताबिक उन्होंने नवाबपुरा में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी दफ्तर खोल रखा था, जिसकी पादाश में मुस्लिम लीग नून के कारकुन मोहम्मद शाहिद ने उन पर तशद्दुद किया और जबरदस्ती तहरीक इंसाफ का इंतखाबी दफ्तर बंद करवा दिया। तहरीक इंसाफ NA 125 के उम्मीदवार हामिद खान ने वाल्टन मिन बाजार में डोर टू डोर कैंपेन का एहतमाम किया। NA 125 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद खान ने मकामी ताजरों और रिहायशियों के साथ मुलाकातें भी की। तहरीक इंसाफ PP 155 के उम्मीदवार हाफिज फरहद अब्बास ने वाल्टन UC 6 में अहले इलाका से मुलाकात की। हल्का NA 125 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हाफिज फरहद अब्बास के हमरा उस्मान अवान, चौधरी मोहम्मद खान, इश्तियाक अहमद, आसिफ अंसारी भी थे। हाफिज फरहद ने मकामी ताजरों से मुलाकात की और डोर टू डोर कैंपेन की। PP 156 के इलाके लोमिया मंडी कैंट में PTI के उम्मीदवार एहसन रशीद के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन रशीद की लोमिया मंडी कैंट में आमद पर कारकुनों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और नारेबाजी की। इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर अदीब चौधरी, मोहम्मद शेराज, शहरोज सिद्दीकी, मोहम्मद अरसलान समेत तब्दीली रजाकार और दीगर कारकुन भी मौजूद थे।
एहसन रशीद ने कहा कि मुल्क में तब्दीली की बुनियाद रखने के लिए नौजवानों का साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की किस्मत का फैसला नौजवान करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में मरियम नवाज, मियां मरगूब, बिलाल यासीन और इमरान खान को पेशी से मुस्तस्ना करार देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मरियम नवाज को कल तलब कर लिया, जबकि इमरान खान को 4 मई तक हर सूरत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नज़ीर अहमद कुचाना ने मरियम नवाज, मियां मरगूब और बिलाल यासीन की तरफ से बगैर इजाज़त NA 120 के इलाके अमीनपुरा में कार रैली निकालने पर ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम भी अपने जोरों पर पहुंच गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भाटी गेट मरकजी दफ्तर में हल्का PP 142 की इंतखाबी फहरिस्तों को मुकम्मल करने का काम जारी है। मरकजी दफ्तर में मियां मोहम्मद असलम की क़यादत में मोहम्मद जुबैर, खालिद भट्ट, मिर्जा आफ्ताब, नईम शेख, साबिक MP वसीम कादिर और केबर ताज की जेर निगरानी हल्के के वोटर्स की निशानदही की जा रही है। मियां मोहम्मद असलम ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे। सुपीरियर कॉलेज रावी कैंपस में सालाना खेलों में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात देने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। NA 118 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी मलिक रियाज और ख्वाजा इमरान नजीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में कॉलेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर खिजर हयात, लेक्चरार मकसूद रहमान, प्रोफेसर जफर इकबाल, प्रोफेसर शहजाद समेत असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ खेलों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। शाहदरा मोड़ मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। NA 118 से हाजी मलिक रियाज और PP 137 से ख्वाजा इमरान नजीर ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले कारकुनों से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुनों में मलिक शबीर, अब्दुल अवान, आफे ठेकेदार, मोहम्मद अफजल खान, मुस्लिम भट्टी, मुजम्मल शाह समेत दीगर अफराद शामिल थे। PP 139 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल यासीन ने कॉर्नर मीटिंग की। इस मौके पर मियां बिलाल यासीन ने कारकुनों से कहा कि वो डोर टू डोर कैंपेन करें और मियां नवाज शरीफ का पैगाम घर घर पहुंचाएं। मोहनी रोड पर होने वाली कॉर्नर मीटिंग में मलिक यूनस, असगर खोकर, शेख इखलाक, आबिद पहलवान समेत दीगर लीगी कारकुनों ने शिरकत की। PP 139 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां बिलाल यासीन ने चौहान पार्क में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। चौहान पार्क में लीगी कारकुन जहांजेब आवान की तरफ से इंतखाबी दफ्तर कायम किया गया है। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बिलाल यासीन ने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरस में उन्होंने हल्के की पसमानदगी दूर करने के लिए दिन रात काम किया और आइंदा भी करेंगे। अवाम 11 मई को शेर के निशान पर मोहर लगाएं। कॉर्नर मीटिंग में ख्वाजा सुहेल चौधरी, शहाब बशारत और मियां शफकत समेत दीगर कारकुनान और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आला क़यादत की हिदायत के बाद डोर टू डोर कैंपेन में तेजी ले आए हैं। NA 121 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हम्माद अजहर और PP 149 से मियां अकरम उस्मान ने रुस्तम पार्क का दौरा किया। दोनों उम्मीदवारों ने घर घर जाकर वोटर्स से जबकि बाजारों में दुकानदारों से मुलाकात की। हम्माद अजहर और मियां अकरम उस्मान का कहना था कि मुल्क में खुशहाली चेहरे बदलने से नहीं बल्कि निज़ाम बदलने से आएगी। हल्का PP 152 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर मुराद रास ने NA 126 के उम्मीदवार शफकत महमूद के हमरा गुलबर्ग मेन मार्केट में इंतखाबी मुहिम चलाई और दुकानदारों से मुलाकातें की। दुकानदारों ने तहरीक इंसाफ के दोनों उम्मीदवारों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उधर शफकत महमूद और डॉक्टर मुराद रास के एजाज में मॉडल टाउन सोसाइटी में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। इसमें इमरान खान की हमशीरा अलिया खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम जनरल रिटायर्ड ताहिर कारदार ने किया। इस मौके पर शफकत महमूद और डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि इस वक्त मुल्क को दरपेश मसाइल से सिर्फ PTI ही निकाल सकती है। हल्का PP 147 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर अब्दुल अलीम खान ने मियां मीर पिंड में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शुएब सदीकी भी मौजूद थे। इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद अब्दुल अलीम खान ने कहा कि PTI ने लाहौर के तमाम हल्कों में इंतखाबी दफ्तर खोल दिए हैं और UC सतह पर तमाम तंजीमी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम के जरिए से अपने मंशूर को घर घर तक पहुँचाएंगे। PP 160 के इलाके हंजरवाल में मलिक बशीर लालू के डेरे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 160 से उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर ने कहा कि इमरान खान मुल्क में हकीकी तब्दीली लाएंगे। हल्का PP 156 कैंट के इलाके खैबर कॉलोनी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन रशीद ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम की। इस मौके पर यूनियन काउंसिल 1 कैंट इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से साजिद बशीर भी उनके हमराह थे। एहसन रशीद ने लोगों से अपील की कि वो 11 मई को वोट कास्ट करें। PP 141 में तहरीक इंसाफ खवातीन विंग के ज़ेरे एहतमाम सुल्तानपुरा के इलाके में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया।
جس میں NA-119 سے امیدوار محمد مدنی، میاں محمد اشفاق، لبنہ ملک سمیت خواتین کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حلقہ PP 155 سے تحریک انصاف کے امیدوار حافظ فرد عباس نے UC 6 والٹن میں اہل علاقہ سے ملاقات کی اور پارٹی منشور سے آگاہ کیا۔ حافظ فرد نے مقامی تاجروں سے بھی ملاقات کی۔ کیولری گراؤنڈ میں تحریک انصاف کی مرکزی رہنما نجمہ سلیم کی رہائش گاہ پر کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں NA-125 اور PP 156 سے امیدواروں حامد خان اور احسن رشید نے شرکت کی۔ کارنر میٹنگ میں نادرہ احسن، سلونی بخاری، گلناز حامد، عارفہ ناجی، ذیشان بٹ، شاکر محمود سمیت دیگر کارکنان بھی شریک تھے۔ NA-127 سے تحریک انصاف کے امیدوار نصر اللہ مغل نے ٹاؤن شپ سیکٹر 8-2 میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا، جس میں رضاکاروں کو انتخابی مہم تیز کرنے کے حوالے سے تجاویز دی گئیں۔ میٹنگ میں سینئر رہنما فرید خان، راشد قادری، ڈاکٹر شہزاد سمیت کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نظام بلاک اقبال ٹاؤن میں تحریک انصاف کے NA-126 سے امیدوار شفقت محمود اور PP 151 سے امیدوار میاں محمود رشید کے اعزاز میں جلسہ منعقد کیا گیا۔ شفقت محمود اور محمود رشید کا کہنا تھا کہ امید کی واحد کرن صرف عمران خان ہی ہیں۔ حلقہ NA-130 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار طالب حسین سندھو اور حلقہ PP 157 سے امیدوار حامد سرور کے اعزاز میں الطاف کالونی میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ طالب حسین سندھو کا کہنا تھا کہ PTI وہ واحد جماعت ہے جو ملک میں انقلاب لا سکتی ہے۔ ادھر UC 57 رزاق کالونی میں بھی حامد سرور کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے حامد سرور کا کہنا تھا کہ عمران خان ہی حقیقی لیڈر ہیں، جنہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی شوکت خانہ ہسپتال اور نمل یونیورسٹی جیسے منصوبے عوام کو تحفے میں دیے ہیں۔ PP 153 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں طارق عزیز کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم جاری ہے۔ انہوں نے 2 دفاتر کا افتتاح بھی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں طارق عزیز نے ندیم پاک اکبر شہید روڈ پر ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم چلائی اور 2 انتخابی دفاتر کا افتتاح بھی کیا۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں شعبہ فارسی کے تحت شاعر مشرق علامہ اقبال کے شعری مجموعے پیام مشرق کی تقریب پذیرائی منعقد ہوئی۔ تقریب میں ایرانی کونسل جنرل ڈاکٹر عباس فاموری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب پذیرائی میں LCWU کے وائس چانسلر ڈاکٹر سبیحہ منصور، فیض احمد فیض کے نواسے علی ہاشمی، شعبہ فارسی کی چیئرپرسن ڈاکٹر فلیحہ قاسمی سمیت طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈاکٹر عباس فاموری کا کہنا تھا کہ حکیم الامت علامہ اقبال کی شاعری ایران کی درسگاہوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ 48 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری اختر رسول اور تحریک انصاف کے امیدوار میاں محمد اسلم اقبال نے 2 روز قبل قتل ہونے والے تاجر میاں کاشف کی رسم کل میں شرکت کی۔ 2 روز قبل سمن آباد میں قتل ہونے والے شو روم کے مالک میاں کاشف کی رسم کل ان کی رہائش گاہ سمن آباد میں ادا کی گئی، جس میں چودھری اختر رسول، میاں محمد اسلم اقبال، میاں نعیم، ارشد علی انصاری، فہد محمود ایڈوکیٹ، ہارون رفاقت اور اہم کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکاروں نے مجاہد فورس کو دوران تلاشی دھماکہ خیز مواد کا پتہ چلانے اور گاڑیوں کی تلاشی کی تربیت دی۔ قربان لائنز میں SP مجاہد اسکواڈ کیپٹن ریٹائرڈ رومیل اکرم کی جانب سے منعقدہ تربیتی سیشن میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم نے مجاہد فورس کے اہلکاروں کو لیکچر دیا۔ ادارہ برائے امن اور روشن خیالی کے زیر اہتمام پریس کلب میں سربجیت سنگھ کی رہائی کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے نمائندہ سیدہ دیپ کا کہنا تھا کہ پاک بھارت تعلقات کو سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔